there is a topic that book of तो आज हम Daniel, बात कर रहे हैं आग के बीच में विश्वास। Daniel chapter 3. आप खोले दानियेल की किताब 3रा अध्याय। So before we have already read, and then some are late, they are not reading, but this today I will talk about the whole story here, and we already know. But here is something that very interesting taking place in Daniel's life, and then also here where I put it the title that faith in the midst of fire. It is not all about Daniel and you and I. The God is talking us here. तो यहाँ पे सिर्फ परमेश्वर दानियेल से नहीं लेकिन हम सबसे बात कर रहे हैं, इसलिए पास्टोरेज का आज का विषय ही So है। we should have a faith in the midst of problem. तो मुश्किलों के बीच में भी हमें विश्वास रखना चाहिए। So faith in the midst of fire means what is that God talking about? मतलब परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है इससे? So faith in the midst of fire means that you might be not, Daniel and Abednego, the 14 people, they go through, you might not be going through. तो हो सकता है जो दानियेल के 3 दोस्तों के जीवनों में हो रहा वो वैसा ही एग्जैक्ट आपके जीवन में ना हो रहा हो। But you also going through a fire. लेकिन आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं एक आग। You might be going through fire. Your fire might be sickness. हो सकता है आपकी आग आपकी बीमारियां हो। Your fire might be disease. कोई रोग हो। Your fire might be witchcraft, black magic. कोई काला जादू तंत्र मंत्र हो। Your fire might be addiction. आपकी आग आपकी कोई बुरी आदत हो। Or your fire might be attack. या कोई अटैक हो। Or your fire might be no job. या आपके पास नौकरी ना हो। Or your fire might be family issue. या फैमिली का इशू हो। Or your fire might be you are going through, somebody want to put in fire in you and you are going through and you are suffering. या कोई आपके जीवन में आग डालना चाहता है, मतलब मुश्किल परिस्थितियां डालना चाहता है और आप उनसे जूझ रहे हो। But the Bible says in the midst of that we need to have a faith. लेकिन बाइबल बता रही है इन सब के बीच में भी हमें विश्वास रखना चाहिए। Today many people when the problem comes, आज बहुत से लोग जिनके जीवन में परेशानियां आती हैं, they fell from God. तो प्रभु से दूर हो जाते हैं। Their faith are give up. उनका विश्वास हार मान जाता है। When they have so much problem come, जब उनके जीवन में ज्यादा परेशानियां आती हैं, you take fasting, आप उपवास करते you हो, come to church, चर्च आते you हो, come for healing service, चंगाई की सभा में you आते हो, pray. प्रार्थना ही करते हैं। Then when we are not going out, और जब बाहर नहीं जाते, or these things are not healed, और या फिर इन चीजों से हम ठीक नहीं होते, then we complain God. फिर हम शिकायतें Then करते we used to give up our हैं। faith. फिर हम कहते हैं विश्वास तो खत्म। And then we say God is not healing me. और हम कहते हैं I परमेश्वर मुझे चंगाई नहीं दे pray, रहा। I take fasting, फिर उपवास भी I किया, come to healing service every प्रार्थना time. किया, सभा में भी आया, I request pastor to pray for me all पास्टर the से भी time. बोला मैंने प्रेयर करने के लिए, But my situation never go पर away. परिस्थिति तो चेंज नहीं होती। So many times and we lost our faith. और इसलिए क्या होता है, धीरे-धीरे अपना विश्वास खो देते हैं। But the Bible says in the midst of this problem, लेकिन बाइबल बताती है इन सारी परेशानी के बीच में, in the midst of this situation, इस परिस्थिति के बीच में, and in the midst of difficulties, सारी मुश्किलों के बीच में, in the midst of struggle, मुश्किलों के बीच in में, the midst of people might be trying to kill you, या लोग आपको मारना चाहते हैं उसके बीच में, but God said we should be faith in God. तो परमेश्वर कहता है प्रभु में विश्वास रखो। And you might be challenging, you might be going through so many challenges. हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी चुनौतियां हो, You are rejected. आपको नकारा You गया, are condemned. आपको छोड़ दिया गया, You are a nobody. आपको कोई नहीं जानता, And when you look around, no one help you. और आप लोगों को जब उम्मीद रखते हैं तो कोई आपकी मदद भी नहीं You करता। pray, but you are going through. आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन फिर भी परेशानियों में हो। But in that midst of that, लेकिन उन सब के God बीच said में we should faith in God. प्रभु कहता है विश्वास रखो, So that you will see the victory. ताकि आप सफलता को पाओगे। But without facing these things, लेकिन जब तक इन चीजों का सामना आप नहीं करते, how will you get the victory? कैसे सफलता मिलेगी? So to see or you go through all these things, after that only you see the victory. जब आप इन सारी मुश्किलों से निकलते हो उसके बाद ही आपको सफलता मिलती है। Amen? Amen. So the same thing here today, I want to bring the story of what Daniel. तो आज हम दानियेल के 3 दोस्तों की कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं। And Daniel and all they were the very young children. जो दानियेल के 3 दोस्त बहुत जवान थे। The Bible says in the Daniel chapter 1 when you read, they are in the very teenage line of beer and teenage. बाइबल बताती है कि जब उनको बेबीलोन लाया गया उस समय वो काफी जवान थे, मतलब 12, 13, 14 साल They के are थे। Jews. यहूदी थे वो लोग। The Babylon king Nebuchadnezzar, they come and capture the Jewish people. जब बेबीलोन का जो राजा था नबूकदनेस्सर, वो आगे उन्होंने उन लोगों को दानियेल सब सारे यहूदी लोगों को अपने पास बंदी बना Just like before India was captured by British, जैसे पहले भारत के ऊपर भी अंग्रेज लोग राज कर रहे थे and they come and rule. और वो आके राज करते So थे। the same thing, but they didn't come and rule, but they captured the people. लेकिन बेबीलोन के राजा ने ऐसा नहीं करा कि उनके देश में आके राज किया, वो उनके देश में आके उनको बंदी बना के अपने देश में ले गए। So all the Israelite people, they take them to Babylon, तो सारे इजराइल लोगों पर उनको बंदी बना के वो सबको बेबीलोन ले गया and they make them slave. और उन्हें अपना नौकर बना लिया। They make them to build a house.
They make them to build, they work for the king. और उन्हें बंधुआई में रख लिया और राजा के लिए काम करते, घर बनाते थे, ईंटों का काम करते थे They make the king palace. या महल बनाने में। And then, the Bible says that, the Nebuchadnezzar is that he want to become a famous, and he is really famous. और बाइबल बताती है कि नबूकदनेस्सर पहले ही बहुत ज्यादा उसका औहदा था और बहुत फेमस था, लेकिन वो और भी ज्यादा फेमस होना चाहता था। And he was a very powerful and wicked king. और वो बहुत सामर्थी लेकिन बहुत ही बुरा राजा था। So now the Daniel and all, they were very young time, they took to the Babylon. तो दानियल और उसके 3 दोस्तों को बाकी बहुत सारे लोगों को बेबीलोन में लेके गया गया। If you want to know the whole story, you read in Daniel chapter 1, 2. अगर आप दानियल का पहला और दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, इसकी पूरा अच्छे से आप इतिहास को So now पढ़ेंगे। they are coming and living. वो जैसे आके बेबीलोन में रहने लगे। Then, the king Nebuchadnezzar want the very intelligent people, very healthy people, good people, handsome people. They want them to walk in the king अब palace. जो राजा है अपने महल में जो उसने अधिकारी लोग रखे थे, वो और लोगों को नियुक्त कर रहा था अधिकारी बनने के लिए। वो चाहता था कि मेरे राज के अंदर, मेरे महल के अंदर अच्छे स्मार्ट लड़के होने चाहिए, बहुत बुद्धिमान, बहुत ही अच्छी समझ वाले लोगों को ही मैं नियुक्त करूंगा To serve for the kingdom. ताकि वो राजा के लिए काम करे And to become their, tradition culture, to follow the culture, to become और ताकि जो इजराइल से लोग आए हैं यहाँ पर आते हैं धीरे-धीरे हमारे ही संस्कृति को अपनाने भी लगते हैं। So they give the education, the Babylon language. तो बेबीलोन के राजा ने उन नियुक्त किए हुए लोगों को अच्छे से पढ़ाई भी करवाई And their name also changed. और उनके नामों को भी बदल दिया गया। So they take their name and they take all the, Babylon name. तो इजराइल के लोगों ने बेबीलोन के देश में जाके बेबीलोन के जैसे ही उनकी संस्कृति के अनुसार नाम रखे। The 4 people, the Daniel 3 people, Abednego, Meshach, what is that? और जो दानियल के 3 तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो थे, these 3 people, they changed their name and they put it Babylon name. और इन चारों के नाम बदल के बेबीलोन के नामों के अनुसार इनके नाम रखे। And they're working under the king Nebuchadnezzar. और वो नबूकदनेस्सर राजा के नीचे कार्य कर रहे थे। How Daniel become a promoted? अब आप देखिए दानियल कैसे ऊपर अधिकारी When बनता you गया। see the chapter 2, अगर आप दूसरा अध्याय Daniel पढ़ते was हैं, interpret the king dream. अब क्या हुआ, राजा को एक सपना आया और उस सपने का अनुवाद दानियल लेकर के इसलिए राजा ने दानियल को उच्च पद दे दिया। And then the friend and Daniel and all, they were promoted, in the office step by step. और क्या हुआ, धीरे-धीरे करके दानियल और उसके 3 दोस्तों को धीरे-धीरे करके And they are अधिकारी very बना दिया। intellectual. और वो बहुत समझदार भी And थे they're very famous. और बहुत बुद्धिमान And और famous Babylon थे। people doesn't like it. और बेबीलोन के लोगों को पसंद नहीं थी कि बाहर देश के लोग आके हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। And they are becoming so intelligent. That's why the people working together in the office, and the people doesn't like it. अब क्या हुआ, क्योंकि वो दानियल और उसके दोस्त वहाँ पे राजा के यहाँ काम कर रहे थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो जो खुद के बेबीलोन के लोग थे वो दानियल और उसके दोस्तों को पसंद नहीं करते। So in this time now, the Nebuchadnezzar, you will see in the chapter 4 also, that they put in the lion dance. But now today we are talking about the image of Babylon. तो आज हम बात कर रहे हैं कि बेबीलोन जो नबूकदनेस्सर राजा की छवि जो मूर्ति की। So one day Nebuchadnezzar told them to make his statue, very big statue. तो एक दिन नबूकदनेस्सर राजा ने क्या कहा, अपने मंत्रियों को बोले कि जाओ मेरी एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाओ। And he told all the governor, all the servants. तो सारे अधिकारियों को, सारे दासों को बोला मिलके काम करो और मेरी बहुत बड़ी 60 हाथ की मूर्ति बनाओ। Then he said image, was 6 cubic, and then also 6, in the 9 feet. That means they say that it is higher than 8 building story. तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी उसकी। And then the king Nebuchadnezzar told them to make, and he giving every direction. और राजा ने बताया कि ऐसे मूर्ति बनाना, इतनी लंबी बनाना, इतनी चौड़ी बनाना, इस मेटल की बनाना, सब कुछ बताया। And then all the nation, all the Babylon, every tribe, every language must be bow down and worship. और उसके बाद ये बताया गया कि ये मूर्ति बन रही है, सारी जाति के लोगों को जो बेबीलोन में रहते हैं उन सबको इस मूर्ति के आगे सर झुकाना है। And then also you need to sing and worship, dance and everything. और उसके सामने उसकी आराधना भी करनी है। See, there is a worship is so powerful, आप देखें आराधना में बहुत सामर्थ्य है। Daniel told them, you need to go down in Daniel 3:6. Now the Nebuchadnezzar told them, the king Nebuchadnezzar has set up, and who does not fall down and worship shall be cast immediately into the midst of burning fire. और उसके बाद ये घोषणा की गई 3:6 में लिखा है कि सबको उसको दंडवत करना है। जब उसके बाद यहाँ पे लिखा है जो कोई गिरकर दंडवत नहीं करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। And then also verse 5. और 5वें वचन में क्या लिखा हुआ है? When they worship, there will be music and everything.
हमने बोला जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, ये घोषणा हुई सब लोगों के लिए, तब तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। Amen. See here the God also talking about the importance of music. तो यहाँ पर परमेश्वर भी संगीत की महत्वता की बात कर रहे हैं। See Daniel time and this time of Nebuchadnezzar time, the music also he demand. आप ये देखें नबूकदनेस्सर राजा के समय में भी राजा मंत्रियों से मतलब आराधना की संगीत की उम्मीद रखता था। Because music can influence the people life. क्योंकि संगीत दूसरों के जीवनों को बदल सकता है। And music is everyone want to listen. Even the small side when you start the music, they shaking stuff. संगीत एक ऐसी चीज है जो हर इंसान ही एंजॉय करता है। अगर आप 2 साल के बच्चे के सामने भी गाने बजा दोगे ना वो भी हिलने डुलने लग जाएगा। So music is so powerful to save the people life. तो इसका संगीत में इतना सामर्थ्य है किसी को भी हिला सकता है। That is why God wanted them, so the purpose that God created us to worship Him. और इसीलिए ही परमेश्वर ने हमें भी चुना है कि हम भी परमेश्वर को संगीत से So now the Nebuchadnezzar demand that when you worshiping, there will be so many music so that can touch the people heart. तो नबूकदनेस्सर राजा ने भी ऐसे ही कहा कि तुम संगीत बजाना, संगीत बजा के जब लोगों का दिल हिल जाएगा उसके बाद लोग मेरी मूर्ति के आगे सर झुकाएंगे। So now everything done. सब कुछ हो गया। And now the music everywhere coming. अब क्या हुआ जोर की ये वीणा सारंगी I was watching the movie, then so many people go down in the midst of thousands and million people and worshiping the तो idol. जैसे हजारों लाखों लोग उस जगह पर रहते थे बेबीलोन में, जैसे ये जोर जोर की सारे के सारे संगीत के जो तंत्र The group of a party of drum, party of pipe, जितने इंस्ट्रूमेंट थे सारे के सारे जब बजने लगे तो लोगों को ये अंदेशा हुआ कि अच्छा ये उस समय है कि हमें इसके सारे सर झुकाना है और बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों ने सर झुका के उस मूर्ति के दंडवत कर दिया। So when the music starts, और जैसे म्यूजिक स्टार्ट हुआ everyone would go down हर कोई घुटनों पे आ गया and worship the idol. और उस मूर्ति के आगे That's सर झुका दिया। उस मूर्ति Then Nebuchadnezzar was sitting in the throne और राजा आराम से अपनी राज कर दिया and he see the people. और लोगों को देख रहा था People were all millions would go और खुश हो down. रहा था यार मेरी मूर्ति में देखो लाखों लाखों लोग सर झुका And रहे the musician would play the music और जो म्यूजिक के लोग थे वो गाने बजा रहे until थे unless they finish. जब तक खत्म नहीं हुआ They would go down. वो झुके नहीं Then I रहे। saw the movie, when the people go down. जब भाई बात से कह रही हूँ मूवी देखी ना तो उसमें था कि सब लोग जब झुकते हैं Then these 3 people, they are the one who stand in the midst of congregation. They stand. तो सारी भीड़ तो ऐसे है मतलब 3 डंडे ऐसे खड़े हो 3 आदमी ने बिल्कुल नहीं सर झुकाया। Then Nebuchadnezzar was so angry. तो राजा देख रहा है ये 3 Everyone is go down. हर कोई झुक रहा है। Bring those people away. They are not बुलाओ going इनसे बात करता हूँ क्यों नहीं झुक रहे भाई? Why they are not go down? क्यों नहीं झुक रहे? Everyone is go down the statue. जब हर कोई मूर्ति के झुक रहा है तो ये But these 3 people standing in the midst of it. See, all the people go down there. They can see clearly that 3 people are standing. क्योंकि अगर इतनी भीड़ और सारे के सारे अगर जमीन पर लेटे हुए और 3 खड़े रहेंगे तो अच्छे से सबको नजर आ रहा है ये लोग सीना चौड़ा करके तीनों खड़े हुए And they're worshiping God. और वो प्रभु की आराधना कर रहे हैं। They're reading the what is our Father who are in heaven. In the movie, they are reading that scripture. और पास्टर कह रही है कि जब उन्होंने वीडियो देखी उस वीडियो में तो हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है वो ये प्रार्थना कर रहे हैं। So now Nebuchadnezzar told them to bring them. तो राजा ने बोला 3 लोगों को लेकर And Nebuchadnezzar bring them these people. जब उनके सामने लाया गया And they have an order that if the person is not worshiping idol, they will put into the fire. और जैसे ही पहले से ही घोषणा हो चुकी थी कि जो लोग भी मेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे उनको धड़कते हुए भट्टे के अंदर डाल देंगे। So that is the punishment. ये उनकी पनिशमेंट। So in this country, the king, the Nebuchadnezzar was the king Babylon nation. If they are not worshiping the statue, then they will put into fire. तो लोगों ने घोषणा करी कि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर है और इसलिए उसकी मूर्ति आगे सबको झुकना है जो नहीं झुकेगा उसको आग के भट्टे में डाल देंगे। Then it is coming the Jewish people, they come to Babylon, they didn't worship this idol. लेकिन यहूदी लोग जो बेबीलोन में है वो इस मूर्ति की तो आराधना नहीं करते थे। They know that Bible told them you should not worship idol. और बाइबल में ये लिखा है और जो परमेश्वर के लोग हैं वो जानते हैं कि हमें किसी मूर्ति के सर नहीं So झुकाना। anywhere that they go, they have in their heart, और कई बार भी जाते उनके मन में है कि हमें किसी मूर्ति के सर नहीं we झुकाना। should worship the true living हम God. सिर्फ सच्चे जिंदा परमेश्वर की No, आराधना we करें। should not bow down any images. हमें किसी भी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाना है। That is why Daniel, they read the book of Genesis, इसका मतलब दानियल और उसके दोस्तों ने उत्पत्ति किताब पढ़ी Exodus, और निर्गमन की the किताब book of पढ़ी। law of Moses. यीशु की 5 किताबें मूसा की किताब So है। Exodus chapter 20, God told them you should not worship any images, any idol, bow down. You तो should not bow निर्गमन down. की जैसे 20वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि तुम किसी भी मूर्ति को बनाकर उसके आगे सर मत झुकाना। So now Daniel, they know that because they are worshiping the true living God. और दानियल उसके दोस्त का मतलब परमेश्वर के वचन की जानकारी रखते
रखते होंगे और इसलिए उन्होंने उसके के सर नहीं So, but उठाया। Babylon people and Hindu people, they never worship the true living लेकिन God. जो बेबीलोन के लोग थे तथा हिंदू लोग जब मतलब कि जो परमेश्वर सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, They worship so many God and वो बहुत goddesses. सारे देवी देवताओं की आराधना करते थे। So now Nebuchadnezzar said that no, now it's not God, and God said, I will bring out the one statue everyone must तो worship. नबूकदनेस्सर ने बोला कि देवी देवता के सर मत झुकाओ, अब मेरी मूर्ति के आगे ही सर झुकाओ। So now only we worship the one statue. तो अब से एक ही मूर्ति के साथ सब सर झुकाएंगे। So he give the order, and if nobody worship, they worship another God, then we should put in the fire. और अगर वो राजा की मूर्ति की आराधना करने की बजाय किसी और देवी देवता की मूर्ति की आराधना करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। See now when these are coming from Babylon, coming from Zeus people, they are captive. They are not worshiping now. They disobedient the king. अब क्योंकि जो यहूदी लोग थे उन्होंने राजा की बात नहीं मानी तो उनको पनिशमेंट मिलनी थी। See now everyone were worshiping. Come on, those days king means very powerful. आप देखिए उस समय के जो राजा का जो राज होता ना बहुत ज्यादा सामर्थ्य होता था। What he say nobody cannot stop. जो उसने कह दिया ना वो कोई नहीं रोक सकता। If the king will say kill immediately. अगर राजा ने बोल दिया इस बंदे को मारो तो उसी सेकंड उसको मार देते थे। No mercy, no grace. कोई उस पर न्याय नहीं होता था, कोई अनुग्रह कोई दया नहीं होती थी। And if you request, please, no king, no God. I mean the king order means order. अगर आप उसके पैर ही पड़ जाए प्लीज राजा छोड़ दो वरना मार दो। See in our time now, अब हमारे समय में our God is a king. हमारा परमेश्वर हमारा Bible राजा says है। he is the king of kings and बाइबल Lord of lords. बताती है वो राजाओं का राजा है। How much we committing sin? कितने पाप हम करते हैं He didn't give punishment. पर पनिशमेंट नहीं मिलती है। We ask God, please मेरा पाप को क्षमा कर दो, मेरा पाप को कर दो। प्रभु रोज हम लोग का पाप का ना माफ कर दे। लेकिन see the king of this world cannot be able to forgive the another sin. लेकिन इस दुनिया का राजा दूसरों के पापों को माफ नहीं कर सकता। So now our God is whenever we committing sin, He forgive our sin. लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे पाप करने के बाद में माफ करता है। But now the king Nebuchadnezzar doesn't want to forgive these people. लेकिन राजा को इन तीन लोगों को छोड़ना नहीं था। So what they say that he need to do it. अब उसने बोल दिया कि भट्टे में डालना है तो So डालो। now everyone who worshiping the image of Nebuchadnezzar, तो जितने लोग नबूकदनेस्सर राजा के सामने मूर्ति के सामने झुके थे, that these people are not worshiping. लेकिन ये तीन लोग तो नहीं झुके थे। Then they bring them to king. फिर वो राजा के पास ले गए। Then the king was telling them, why you are not worshiping this? तो राजा ने पूछा भाई क्या हो गया तुम तीन लोग क्यों नहीं झुकते? Then the Daniel told them that we are not worshiping the image, we are worshiping the true living तो God. शद्रक मेशक और अबेदनगो ने बोला कि हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर के भक्त हैं। So now they brought them, verse 8, तो यहाँ पे 8वें वचन में लिखा है and they brought them. उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर 8, 9, 10. वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे हे राजा तू चिरंजीवी रहे। हे राजा तूने तो यह आज्ञा दी कि जो मनुष्य नरसिंगे बांसुरी वीणा सारंगी सितार शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे। 12, 11, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह लगते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख शद्रक मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरे आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की और वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। 13 तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा हे शद्रक मेशक और अबेदनगो तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ाई हुई मूर्ति सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करते तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे बांसुरी वीणा सारंगी सितार शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे और यदि तुम दंडवत नहीं करोगे तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? See now the king then, oh you are not the one who worshiping them, the Daniel and all say yes we are not worshiping. तो राजा ने पूछा कि तुम ही हो जो आराधना करते? कहते हाँ हम ही है जो आराधना नहीं करते। Then Daniel said, I am the God. For you are not worshiping, you must worship. I am the God. He is very proud, तो उतना घमंड कर नहीं मेरी आराधना करो मेरी पूजा लगाइए मेरे देवता की आराधना करो। And I am the God that who can deliver you. I can deliver you.
वो कह रहा कौन तुम्हें छुड़ा सकेगा, मैं ही बचा सकता हूँ, अभी झुक जा, माफ कर दूंगा। That is in the, in the verse 15. So I am the God and nobody can deliver. That is you. I can deliver you. तो वो कह रहा है कि फिर कौन है जो तुम्हें बचा सके, कौन सा देवता बचा सकेगा, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें बचा सकता हूँ। Then how they answer? अब इसका जवाब आप देखिए कितना सुंदर है। 16 वचन। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। हम आंसर देना समझते ही नहीं, इंपॉर्टेंट है, छोड़ो। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। Amen. So now the king and these three people they answered to the king. तो तीन लोगों ने राजा से बात बोला। आप लोग के जीवन में देखो, तो राजा ने ऐसा हो गया, हम तो डर करके वर्शिप करेंगे, नहीं अभी मैं नहीं मरेंगे, फाइन So I know that everyone will stop worshiping God. You will afraid before you are arrested, you will just deny Jesus. तो हम जब लोग होते हैं, हमारा अगर विश्वास प्रभु में इतना कम हो जाता है, हम डर जाते हैं, और अगर यही परिस्थिति हमारी, तो शायद हम में से कई लोग ऐसे होते हैं कि हम कहते नहीं हमें छोड़ दो, हम झुक जाते हैं, पर हमारी जान छोड़ दो। अभी टाइम में क्या है, हम लोग का लाइफ में इंडिया में ना बहुत लोग बोलते हैं पास्टर में प्रभु का मालूम करने का विश्वास करना मन है, लेकिन मैं मेरा सोसाइटी को डर लगता है, मेरा परेशान को, और मेरी शादी को क्या करेंगे, मेरा मरने का टाइम क्या करेंगे, वो सारी चीज हम लोग का डर होता है। So now if just like we are in Babylon and now the king demand you are like a Daniel, what will be your position? तो आप ये सोचिए कि अगर आप दानियल के दोस्तों की जगह पर होते तो आप क्या जवाब देते? अगर आपको दूसरे घर में रखा गया होता, दूसरे देश में रखा गया तो उसके अनुसार चलना होता, तो क्या आप दूसरों के कहने से अपने परमेश्वर को छोड़ देते? Then we demand that Surika, you should worship the idol, or girl, you will be killed and you will not, I know the Surika will say, pastor फोन करेंगे, मैं तो कमाना पड़ेगा, ऐसा नहीं तो हम लोग सारे परिवार मर जाएगा, अभी नहीं मरेगा। See, that is the things that our life we cannot able to stay. तो हम कई बार अपने निर्णय पर खड़े नहीं रह पाते। So now, but Daniel and how strong they are, you see? आप ये देखें कि दानियल के दोस्त कितने ज़्यादा मजबूत थे। Our life was the same thing now. हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे Babylon and now India are same. आप देखिए बेबीलोन और आज का भारत एक जैसा ही है। We are living in the midst of idol worship. हम भी आज मूर्ति पूजकों के बीच में ही रह In the midst of witchcraft, black magic. जहाँ काला जादू और तंत्र मंत्र In the midst of jealousy. जलन के In बीच the में रह midst रहे of bitterness. कड़वाहट के In बीच the में रह midst रहे of anger. गुस्से के In बीच the में रह midst रहे of addiction. जहाँ लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके बीच में रह रहे So हैं। now you are living in your own house. You are like a Daniel and Abishag. आप ये देखिए जैसे दानियल के दोस्त रह रहे थे, ऐसे ही आप भी अपने घरों में रह रहे हैं। Now your parents doesn't know God. आपके माता पिता प्रभु को नहीं जानते। They are torturing you. वो आपको परेशान करते हैं। And they will tell you to do puja. वो आपसे कहते हैं कि तुम पूजा में आओ। So how you stand in that situation? तो उन परिस्थितियों में हम कैसे खड़े रहते हैं? We always cry. हम रोने लग जाते हैं। And then we always complain. ये शिकायतें करते हैं। And we always say, oh, God is not answering my prayer. Sometimes we doubt. कई बार लोग शक करते हैं कि नहीं प्रभु तो हमारी प्रार्थना का जवाब ही नहीं देता। And sometimes we question God. और हम प्रभु से प्रश्न पूछने लग जाते हैं। I go to church, I pray, but God never answer my हम prayer. बोलते हैं प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, पर आप हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं So देते। you are like a Daniel and all. तो कई बार हम लोग भी दानियल और उसके दोस्तों की जैसे ही हैं। We are living in the midst of fire. हम भी आग के बीच में ही जी रहे हैं। Your situation might not be the same that Daniel and all facing. हाँ, दानियल की और आपकी होते परिस्थिति बिल्कुल ही जैसी ना हो। See, in our situation a different way, but you can put yourself. हम सबकी ही परिस्थितियां अलग-अलग हैं, लेकिन फिर भी हम दानियल की कहानी से अपने So आप को in देख that सकते हैं। situation, how is your faith check it out? और जब ऐसी परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? In that situation, you see Daniel and all they are praying to God. दानियल लोग परमेश्वर से प्रार्थना करता है। And that God didn't come and stop the Nebuchadnezzar. जब दानियल और दानियल के दोस्त प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आके राजा को नहीं रोकता है। See, the God allowed them to happen. परमेश्वर कहता नहीं, डालने दो रखे बेटा। हम तो ना करेगा तो ओ प्रभु फायर में मत डालेंगे, मत डालो, हम इसे प्रे करेंगे. So now we know we are not allowed. We don't want to go to fire. We pray.
praying to stop the fire. हम जब भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर परेशानी आने ही मत दो, हमेशा हम ये प्रार्थना करते हैं। And then also you see Daniel and also they may be praying like that. वो दानियल के दोस्त भी और दानियल भी ये प्रार्थना करते हैं, प्लीज आग की भट्टी में मत डालो मत डालो। But God didn't stop the Nebuchadnezzar पर heart. परमेश्वर ने राजा के दिल को नहीं बदला, ये नहीं कहा कि नहीं आग की भट्टी में मत डालो। See, God had the power to change the Nebuchadnezzar. परमेश्वर के पास तो सामर्थ्य था कि वो राजा का मन बदल सकते थे। See, sometimes why your situation are not changed. कई बार क्यों हमारी परिस्थितियां में हम फंस जाते हैं, उससे निकलते नहीं हैं। Why God is not taking out the witchcraft blackness? क्यों परमेश्वर हमारे जीवन से कारणों तंत्र के Why God is not taking out your enemy? कई बार परमेश्वर के जीवन से दुश्मनों को जल्दी से क्यों नहीं निकाल देते हैं? Why you are suffering? क्यों हम लोग अपने जीवन में अलग तरीकों से So the परेशान same रहते thing हैं? Daniel and also like that. तो ऐसे उसके दोस्तों के साथ भी हुआ। So they are stand for God. तो जो उसके दानियल के दोस्त थे प्रभु के लिए खड़े रहे। But still God didn't save in that moment. लेकिन आप ये देखें परमेश्वर ने फिर भी उसके तीनों दोस्तों को उस समय आग के भट्टे में जाने से नहीं रोका। See, everyone were worshipping idol. सब लोग मूर्ति की आराधना कर रहे थे। And everyone were obeying the king. हर कोई राजा की बात को मान रहा And था। God told them don't worship idol. परमेश्वर ने क्या बोला कि मूर्ति की आराधना मत करना। So now God and Daniel and all they are believing God, they obey God. तो दानियल और दानियल के तीन दोस्त प्रभु की आराधना करते थे और उनकी आज्ञाओं पे चलते थे। But all the other people they didn't believe in God, they didn't follow God. लेकिन बाकी भी बहुत सारे लोग हो सकता है इजराइल से आए, लेकिन वो सब प्रभु को इतना अच्छे से फॉलो नहीं करते थे। But the people who follow the God they don't go worshiping image, so these people are following. लेकिन ये जो चार लोग थे प्रभु की आराधना प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे थे, But still they are suffering. लेकिन परेशान तो ये फिर भी थे। See, you see, sometimes we are praying to God. कई बार हम प्रार्थना करते हैं, We pray to God and we have faith, but still we are suffering. हम प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं, फिर भी परेशानियों में ही रहते हैं। कई बार See, they are worshiping the true living God. God can save that moment. वो सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आग के भट्टे में जाने से पहले ही बचा सकते थे, They obey God. क्योंकि प्रभु की आज्ञा पे चल God रहे थे। told them don't worship idol. प्रभु ने कहा मूर्ति के सामने मत They जाओ। obey God. उन्होंने बात मानी, But still they need to get the punishment. पर फिर भी पनिशमेंट क्यों मिली? See, sometimes we are praying, we obey God. कई बार हम भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पे We चलते obey हैं, all the church हम rules. सारे चर्च के रूल्स को भी मान रहे हैं, But still our suffering never go out. फिर भी हमारे जीवन की परेशानी नहीं निकलती है। But God wants us to taste our faith. परमेश्वर हमारी परीक्षा लेना चाहता है। God wants us to go through fire. प्रभु चाहता है कि हम आग के बीच में से निकल के So that you become a gold. ताकि हम सोना बनने पाए। So now, because to get the soil, gold, you need to refine in the fire so much. अगर आपको सोना चाहिए तो आपको पहले उसको आग में जलाना पड़ता है, उसके बाद ही सच्चा सोना मिलता है। So, but without go through in fire, gold will never come a gold, pure gold. लेकिन जैसा एक प्योर गोल्ड होता है, एक असली सोना तब तक नहीं मिलता जब तक उसको अच्छे से आग में जलाया नहीं जाता। So today the world that we live is, gold is the precious one. आज आप देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा जो सबको चाहिए वो सोना ही है। So how the gold go through? तो सोना लेकिन बनने के लिए वो कैसे चरणों तक जाता है? To get the gold, सोना पाने के लिए that gold need to go to fire burn like a heat double, 100%. वो सोने को सोने तक बनने के लिए बहुत सारी आग के बीच में जाना पड़ता है। After that the soul good soul. उसके बाद एक अच्छा सोना तैयार होता है। See now, my question is that I was, when I reading the Bible, जब पास्टर बाइबल पढ़ रही थी, they are worshiping the true living वो God. तो सच्चे परमेश्वर की आराधना They कर रहे हैं, obey God, बात मान रहे but हैं, they go to fire. आग में भी डाला जा रहा है। God didn't come and stop the fire. परमेश्वर ने तो आगे आग भी नहीं रोकी, Not stop the Nebuchadnezzar. राजा को नहीं रोका। But God is. Then these people so Daniel also, Prabhu, we are worshiping you, but see this king is going to put us into fire. लेकिन के तीन दोस्त जो है वो चिल्ला रहे होंगे कि अरे प्रभु में बचाओ, हमें आग में डालने जा रहे So the हैं। Nebuchadnezzar was asking, why you are not worshiping me? तो राजा ने बोला तो मेरी आराधना करो, तुम्हें छोड़ देंगे। And then what is the Daniel say? I have nothing to tell you and not to answer you, but we are not worshiping idol, we are worshiping the true तो living दानियल God. के दोस्तों ने क्या, शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या बोला कि हमारे पास तुम्हें कुछ बताने के लिए नहीं है, तुमसे बात करना भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा क्योंकि हम तुम्हारी बात मानने भी नहीं वाले। And if I tell you also, you will not be, stop your command. और अगर तुम मुझे कुछ भी बोलोगे ना फिर भी हम तुम्हारे अनुसार चलने भी नहीं वाले। Because you say means you are going to do. You say that those people are not worshiping idol, you are going to give a क्योंकि punishment. राजा ने तो बोल ही दिया कि जो लोग मेरी मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे उन्हें आग में डाल देंगे। So now Daniel and all they know that Nebuchadnezzar will not change. तो दानियल उसके दोस्तों को पता, हाँ राजा ने तो निर्णय नहीं रखा, वो तो हमें आग में डालेगा। And then but they also inside heart, they worry that God come and help us. अब शद्रक मेशक और अबेदनगो ने बोल तो दिया लेकिन अंदर से डर तो उन्हें भी See, लग today रहा होगा। many people are living truthful life, they suffer more. आज आप ये देखिए जो लोग आज सच्चा जीवन जी रहे सबसे ज्यादा परेशान वही रहते हैं।
And today many people they stand for the truth, they always suffer. जो लोग हमेशा सत्य के साथ खड़े रहते हैं उनके जीवन में परेशानियां भी ज्यादा आती हैं। But later people know that that person they overcome and people know that yes this person is लेकिन a बाद nice में person. जब वो लोग अपनी परेशानी के ऊपर जय पाते हैं तब लोग समझते हैं कि हाँ ये लोग सच्चे थे। But today many people who are suffer more, you know, those people are more people righteous and more truthful people. लेकिन आज जो लोग ज्यादा परेशान हैं वो वही लोग हैं जो सबसे सच्चे हैं। But you know the rubbish people, like you know, like foolish people, like people who don't know God, they doesn't care their life. But those people they suffer. लेकिन जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनको अपने जीवन से परेशानी भी नहीं, उनका जीवन चल रहा, उनका जीवन बहुत अच्छा चलता है। Because God allowed them, God is waiting for the fire to burn in hell. क्योंकि परमेश्वर कहते हैं हाँ हाँ मजे कर लो, बाद में तो नरक ही जाना। So now like this, then how they do? Nebuchadnezzar was more angry. अब उनके जवाब सुन के राजा को और गुस्सा आ गया। Then he told them, you know, verse 19-20. तो 19 और 20 में क्या लिखा है? We are not ready. So now Nebuchadnezzar told them, he was so angry, then he told them to be 7 times heater than before. अब राजा को इतना गुस्सा आ गया कि भाई इनका तो कॉन्फिडेंस देखो, पनिशमेंट के बाद भी तो उन्होंने बोला अब ना इस भट्टी को ना 7 गुना और गर्म कर दो। Nebuchadnezzar thought that, you know, when they bring to him, and they thought that Daniel and these people, they will be worshipping them, and Daniel will say, oh forgive me, oh maaf kar do, hum karenge. So that Daniel and Nebuchadnezzar was expecting like that. तो राजा ने उन तीनों को अपने सामने इसलिए बुलाया कि उसको उम्मीद होगी कि हाँ ये तीन लोग मेरे सामने खड़े होंगे ना, कब पाएंगे राजा राजा छोड़ दो गलती हो गई और झुक जाएंगे। So Nebuchadnezzar may be expecting. राजा ने शायद ये उम्मीद करी होगी। But they're very strong inside. लेकिन उनमें तो कुछ We said no, no. We will not worshiping you. हम नहीं झुकने। You are not God. तुम प्रभु थोड़ी हो। You are created by God. तुम्हें भी प्रभु ने बनाया है। You are not God. I'm not worshiping you. हम तुम्हारी आराधना क्यों करें? There is a God, the living God. एक जिंदा परमेश्वर। The God of Abraham, Isaac, जो Jacob. अब्राहम, इसहाक और याकूब को That परमेश्वर। God is our God. वो परमेश्वर हमारा So we परमेश्वर। will not worshiping you. तो हम तुम्हारे सामने नहीं You are झुकेंगे। human being like us. तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। You can't do nothing. तुम कुछ ऐसा स्पेशल नहीं कर सकते। Then Nebuchadnezzar was so angry. राजा गुस्सा और बढ़ गया। Tell his servant 7 times hitter them. अच्छा अब जलाओ दे तो 7 गुना और भट्टे को जला दे। Then they put 7 times. 7 गुना और आग को बढ़ा देंगे। Nebuchadnezzar then tell them to go in the fire. राजा ने बोला फेंकियो इन तीनों आदमियों पे। And they went. और वो गए। They thought that they are also going to burn. और वो लोग डर तो लगी You रहा know, कि अभी मैं तो लोग भी नहीं ऐसे कर रहा था, push कर रहा था. You know, see, they are also thinking that today is our life. तो वीडियो में ये दिखाया था कि उन्होंने बोला कि अरे नहीं मतलब डर तो लग रहा है, कॉन्फिडेंस में बोल तो नहीं लेकिन डर लग रहा है जाने But में। उन लोग का hope क्या है? लेकिन Even though we will die, we go to heaven. लेकिन उनको डर तो लग रहा है, लेकिन उनकी उम्मीद है कि मरने के बाद हम प्रभु के पास ही जाएंगे। So now they never thought that they will rescue from fire. लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं थी कि हम उनको था कि हम आगे चलने ही जा रहे हैं। And they know that they will burn and they will go to heaven. उनको लगा कि मरेंगे प्रभु के सामने पहुंच जाएंगे। So they never think that they will, you know, the fire will not consume them. और उनको लगा कि जो आग है पूरी तरह खा जाएगी। They never imagine. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्रभु में हम They शामिल never होंगे। thought. They thought that today is our life end. वो कह रहे 800 दिन का जीवन का अंत This होने is वाला the last day of our life. हमारे जीवन का अंतिम We दिन है। will never see again Israel. अब हम दोबारा इजराइल तो कभी नहीं जाने We वाले। will never go back our country. अपने देश कभी नहीं जाएंगे। This is the last moment that we are going to burn with fire. आज तो आखिरी समय है जो आपके साथ खत्म। But we, if I die also, we go to heaven. लेकिन मरने के बाद हम स्वर्ग तो जाएंगे। So sometimes हम लोग का life में ना ऐसा होता है. When we suffer, oh, last time this is the lifetime, last time that I need to do and I must compromise. So sometimes we come with a compromise. कई बार क्या होता है हम लोग सोचते नहीं लाइफ में कोई परेशानी आई तो कोई बात नहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं फटाफट। But these people no compromise. लेकिन इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। And they are not afraid to die for God. और उन्हें प्रभु के लिए मरने के लिए वो तैयार They are not afraid to die for the living God. जिंदा परमेश्वर के मरने के लिए उनको डर नहीं लग रहा। But if your situation like that, I know that everyone in this house, they will not afraid to die for God. लेकिन हम में से कई लोग हो सकता है कि परिस्थिति ऐसी है तो हम लोग प्रभु के लिए खड़े ना हो पाए। हम तो इधर जवाब देंगे ना, मैं घर बनाना भी नहीं मरेगा। हम तो ऐसे जवाब देंगे ना, मैं बच्चा को देना, पति पोता को भी देखना है, मेरा बच्चा लोग क्या सक्सेसफुल को देखना है, हम तो ऐसे करेगा। लेकिन Daniel think that today our life will end and our life from Babylon we never go see again our country. तो इन लोगों ने अपने परिवार के लिए अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, लेकिन यही बोला कि नहीं हम प्रभु के लिए मरने We need to die for God, we need to live for God. हमें जीना भी प्रभु के लिए And our God is a true living और God. हमारा परमेश्वर जिंदा We परमेश्वर। will not compromise. हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। So now the fire was heated and 7 times. जैसे बताती बाइबल कि वो 7 गुना भट्टे को गर्म किया गया And they go there. और उसके बाद उनको They फेंका गया were put in there. और उसमें The fire was heat.
painful. और देखिए जब आग में बहुत दर्द होता है, हम कभी-कभी सोता सी इसमें क्या है, गैस में भी हम लोग को इसे बर्न करते हैं, इतना पेन होता है. So even small thing when आप क्या है आलू फ्राई करते हैं, भी हम लोग के पास आते हैं तो इतना पेन होता है. See the fire, they putting you in the fire. How is this? जब हम लोग रसोई में भी काम करते हैं, थोड़ा सा भी यहाँ पर गर्म लगता है तो ना जलने लग जाता है, तो सोचो उनके पूरे शरीर को ही आग में डाल दिया. And fire very easy to consume you. और आग बहुत आसानी से आपको पूरा पूरा खत्म कर देती है. Once you put fire in the cloth, they just burn up. अब इस कपड़े में आग लगा कितना जल्दी और आग हो जाता है. See, the fire is not just like a gas. जो The fire is not putting the organizer just like it. The fire is a big fire. जो हमारे घर में गैस होती है तो बहुत ज्यादा कंप्रेस गैस होती है, लेकिन जो बाहर आग जो भट्टे में लगी थी वो अनंत आग थी. How many people see in the Gaon, they cut the mountain and they used to put fire. आपने कभी अगर गांव में या कहीं पे देखा है कि बहुत बड़े मतलब पहाड़ को या बहुत सारे पेड़ों को इकट्ठे आग लगा देते हैं. Our place like that. We are the what is that? Zoom cultivation. Zoom cultivation. They used to cut all the three mountain. तो गांव में अलग तरह की खेती होती है, पहाड़ों में अलग तरह की खेती होती है. उसमें क्या होता है, खेती में कुछ उगाने से पहले जो उसमें उगा होता है ना, पहले सब कुछ आग लगाते हैं, उसको राख बनने देते हैं. In उसके बाद December, January, they cut the whole mountain. दिसंबर और जनवरी के सारे पेड़ों को काट दिया जाता है. And now is the planting time. May they burn the mountain. और मई के अंदर सारे पहाड़ों को आग लगा दी जाती है. Those they know that now the mountain is going to burn. The village will tell us don't go to any jungle. और जब जंगलों में आग लगाई जाती है पहाड़ों पे, तब पास्टर कह रहे गांव में पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं कोई भी पहाड़ों के पास थोड़े समय तक नहीं Today जाएगा. we are going to burn the mountain. आज पहाड़ को जलाने वाले, We are going to burn the खेती. खेती को जलाने वाले. So now the men, the big strong people will go. They carry the matches and they burn the whole mountain will burn. They will burn like anything. And the heat used to come to फिर villages. जो बहुत बदबू तगड़े और आदमी लोग हैं वो वहाँ जाते हैं, माचिस को आग लगाकर उसकी आग बहुत दूर तक पहुँचती है. Just like a hell. We never see hell, but you can see like a hell. हमने नरक तो नहीं देखा, लेकिन नरक की आग जैसी ही आग होती है. You will see the mountain, fire will block. पूरा माउंट पूरा पहाड़ ही जल रहा है. And nobody cannot stand. Animal, bird cannot stand. They will die. कोई भी जानवर पक्षी कुछ नहीं टिकेगा, सब खत्म हो जाता है. And after that, they burned and they planted the rice, vegetable, everything. और जब सब कुछ जल जाता है, ठंडा हो जाता है, सूख जाता है, उसके बाद वो लोग सफाई करके फिर से नई खेती करनी शुरू करते हैं. So that is the thing. See, the fire is so burning, so powerful. आग में बहुत ज्यादा शक्ति होती है. Then now Nebuchadnezzar and these people they put into fire. तो राजा ने इन तीन लोगों को आग में डालने के लिए भेज दिया. Then what they do? फिर क्या हुआ? The fire was not consuming. जब उन तीनों को डाला गया तो तीन लोग जल ही नहीं रहे. Fire was burning like anything. आग तो जल रही है. Nobody cannot come near to that fire. अगर आग के पास भी जा रहे हैं तो भट्टी के पास भी कोई नहीं जा As पा soon रहा. as you enter, they will just burn up. जैसे आप घुसोगे आपको तो आग जला Within देगी. seconds, they will not see you. सेकंड्स के अंदर शरीर खत्म. They just burn up. जल That's जाएगा. the way that they make it. इस तरह से भट्टे को गर्म किया गया. But these three people they enter. जैसे तीन लोग गए, Then what they do? क्या Now, किया? the fire just set aside. Then they were in the midst of the fire. तो वो लोग आग के बीच में खड़े हुए थे. Then Nebuchadnezzar was watching for these people to die. और राजा आराम से पिक्चर देख रहा था, अरे क्या हो रहा है इन लोगों के साथ. Nebuchadnezzar that these people are disobedient, they deserve to die. And हाँ let मेरी them बात die. नहीं मानी ना, मरने वाले, चलो मरने दो. So he was watching over to kill them, to burn them. तो भट्टे को आराम से देख रहा था राजा बैठ के, क्या होगा इन लोगों के साथ. Then he see four people in the midst of the fire. तो राजा ने अपने बंदे से पूछा You see, आग के अंदर 21, कि आपने 3 बंदे डाले थे कि 4 बंदे डाले थे. Then he was telling, oh come and see, we put 3 people, but how 4 people are तो working बंदे inside the ने बोला fire? 3 डाले तो क्या मुझे 4 क्यों नजर आ रहे हैं. And then they see the 4 people, God was walking among them. तो उन्होंने कहा कि 4 लोग एकदम फ्री होके, पहले उनके हाथों को बांध के डाला गया था See, तीनों. when you come to the water, right? Then water used to go out like this. So when they come to the fire comes set aside. तो जैसे वो आग में गए तो आग एक तरफ साइड हो गई और 4 लोग आराम से फ्रीली उस आग में घूम रहे हैं. Even Daniel and one, they were wondering, what is happening? Fire is not consuming. और दादा के 3 दोस्त सोच रहे हैं आग तो आसपास है, जल क्यों नहीं रहे. हम लोग अब नहीं बर्न करा. Even the Bible says that even they hear they call. बाइबल ये बताती है कि उनका एक बाल तक नहीं जला, जबकि उनके कपड़ों से आग की बदबू तक नहीं आ रही थी. And no smell. कोई बदबू नहीं. And then now they see that among them, 3 people, there is a 4 person walking. और उन्होंने देखा कि 3 लोग भी घूम रहे, 4 जने घूम रहे हैं आग के. Then what Nebuchadnezzar said? तो राजा ने क्या Oh, बोला? this man he look like son of God. अरे ये तो परमेश्वर का पुत्र लग रहा है जो चौथा इंसान है.
See, Daniel, Nebuchadnezzar, see that he told the people, this man is not like Daniel, I know this man is the son of God. तो राजा ने बोला ये तीन लोगों की तरह नहीं है, जो चौथा इंसान है ना परमेश्वर के पुत्र के जैसा लगता है। 25 में पढ़ना। 25 में क्या लिखा हुआ है? हाँ। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथा पुरुष का स्वरूप परमेश्वर ईश्वर के पुत्र के सदृश है। Amen. आमीन। See that the Nebuchadnezzar, this man is look like the son of God. ये चौथा इंसान तो ईश्वर के पुत्र के That जैसा है। means Daniel, Nebuchadnezzar already see the son of God or what? That is my question. तो पास्टर के लिए मेरा प्रश्न ये है कि इसे कैसे पता चला कि ईश्वर का पुत्र, इसने ईश्वर का पुत्र पहले देखा है क्या? Nebuchadnezzar doesn't know God. नबूकदनेस्सर ने तब वो राजा को But see, God is speaking to him. नबूकदनेस्सर राजा है, उसने परमेश्वर को कभी नहीं जाना, लेकिन फिर भी परमेश्वर He उसके didn't द्वारा बात believe कर that रहा है। there is a God. He believed that he is a God. वो विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर है, He thinks that he is a वो God. सोचता मैं ही हूँ जो हूँ। So now, but he see among the people, he see that oh, this one is the son of लेकिन God. उसने देखकर क्या बोला कि अरे ये तो ईश्वर का पुत्र लग रहा है। See now, God is speaking to इसका मतलब Nebuchadnezzar. परमेश्वर की आत्मा उसे बुलवा रही है I कि am the son of God. मैं परमेश्वर का पुत्र You हूँ। are not God. तुम प्रभु नहीं हो, You are like, don't allow your people to worship you. तुम लोगों को अपनी आराधना करवाते हो। I am the Lord. तो वो कह रहा Why है you make your statue to worship जो you? परमेश्वर उसको ये अंदर से बता रहा है कि तूने अपनी मूर्ति क्यों बनाई है, मैं हूँ परमेश्वर, तो And you can't do nothing. तुम कुछ नहीं कर सकते। But see, I can stop the fire. मैं आग भी रोक सकता हूँ, I am the God. मैं प्रभु, I can control the universe. मैं ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ, I can control the fire. I मैं can आग पे control the नियंत्रण water. रख सकता हूँ, I पानी can पे control नियंत्रण the रख सकता हूँ, mountain. मैं पहाड़ों पर I नियंत्रण can रखता हूँ, control everything. मैं हर एक चीज पर नियंत्रण See, रखता now हूँ। God is speaking to Nebuchadnezzar. परमेश्वर अब नबूकदनेस्सर से बात कर रहा है, And Nebuchadnezzar also knows the fire nobody cannot stand. और नबूकदनेस्सर राजा को भी पता है कि आग के And अंदर the कोई जिंदा नहीं whole रह सकता, Babylon nation knows that nobody cannot stand. और सारा देश जानता है कि वहाँ पर आग में कोई खड़ा नहीं रह But सकता। these people are standing. पर ये लोग तो ठीक है, Even they were, and then now they know that God is coming and rescues them. और अब वो क्या देख रहे हैं कि प्रभु ने आगे हमें बचा लिया, Now they also started worshiping. और अब वो प्रभु की आराधना And कर रहे now हैं, God's presence was covering them. और प्रभु की उपस्थिति उन पर छाई हुई है, God's glory was covering प्रभु की them महिमा उन पर है in the midst of fire. आग के बीच में। See, that is the things that when you have faith in God, जब आप प्रभु में विश्वास रखते हैं God will allow you to happen things. तो प्रभु आपको मुश्किलों में जाने देंगे, God will allow you to get sickness. प्रभु आपको बीमारी में भी जाने देंगे, And God will allow you to go through this witchcraft, black magic, demonic power attack. प्रभु कई बार आपके ऊपर ऐसे जो तंत्र मंत्र लोग करते हैं सब चीजें होने देंगे, But we should be continue faith in God. लेकिन प्रभु में विश्वास बनाए रखना है। See, Daniel alone, God allowed them to go through fire. परमेश्वर उनको आग से नहीं बचाया, लेकिन आग के अंदर जाने दिया, वहां जाकर बचाया। But God doesn't want to kill you by fire. परमेश्वर ने उनको आग से मरने नहीं दिया। You may be going through all kinds of problems, fire in your life. ऐसे ही हमारे जीवन में हम लोग भी अलग-अलग मुश्किलों का सामना कर रहे होंगे, But if you faith in God, लेकिन अगर आप प्रभु में विश्वास बनाए रखें, you are in the, putting into death, that you are in the death position, God will come and rescue you. लेकिन जब आप परेशानी के बीच में होंगे, प्रभु आपको उससे बाहर निकालेंगे। You are in the people that among you to kill you, but God will come and rescue जब you. लोग आपके बीच में सारे ऐसे होंगे जो आपको मारना चाहते हैं, प्रभु आपको उनसे बचाएगा। Before that, God didn't come and rescue you. प्रभु ने उनके पास जाने से आपको नहीं रोका, But God allowed them to go fire. पर परमेश्वर ने उन लोगों को भी आग में But जाने God दिया, controlled the और fire. प्रभु ने आग को संभाला। Some people will try to kill you with witchcraft, black magic. ऐसे लोग आपके ऊपर काला जादू तंत्र में परेशानी डालेंगे, You are there, you are in the midst of Kaladadu. आप काला जादू की परेशानी के बीच में होंगे, And you are burning with that और Kaladadu. आप उस परेशानी से जूझ रहे होंगे, But God will not allow you to kill you. पर प्रभु आपको उसे मरने नहीं देंगे, God will come and rescue you. आपको बचाएंगे If you have faith. अगर आप विश्वास करें, And if you are worship the true living God. अगर आप सच्चे और जिंदा परमेश्वर की आराधना So करें। that is the things that Daniel and all they want to show us. God is giving us a तो lesson. यही परमेश्वर दानियेल के 3 200 शद्रक मेशक और अबेदनगो के जीवन So से now हमें सिखाया है। today even the Nebuchadnezzar, the Satan himself, see the true living God. तो आज नबूकदनेस्सर राजा ने मतलब जो खुद एक शैतान की तरह था, उसने भी प्रभु को देख लिया। He said, oh, this is the Son of God. उसने क्या बोला था, ईश्वर का पुत्र लग रहा है। So when you are suffering problem, तो जब आपके जीवन में परेशानी you होगी, may be joblessness, हो सकता है आपको you may be नौकरी ना हो, family issue, हो सकता है फैमिली में you इशू, may be marriage हो issue, सकता है शादी का इशू, you may be so many issues. हो सकता है बहुत सारी परेशानी You हो, are hopeless. और उम्मीद ना हो। But लेकिन in the midst of that, उन परेशानियों में people will say, लोग क्या बोलेंगे? this guy is the son and daughter of God. अरे नहीं, ये तो परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी है, That is why he or she is overcome. और इसलिए तो इसने पार पा लिया। We should be that kind of person. हमें ऐसा बनना है।
And that is how God wants us. परमेश्वर हमें ऐसा बनाना चाहते हैं। So now God and through that God giving them victory. और इसके द्वारा प्रभु ने उन्हें सफलता दी। So now that God, what Nebuchadnezzar do? तो जब राजा ने उन लोगों को देख लिया, He know that these people will not die. राजा ने देख लिया ये लोग तो नहीं मर रहे। So what did Nebuchadnezzar तो say? राजा ने क्या बोला? Bring out. इन लोगों को बाहर निकालो। He said, take in. The same person tell them to take inside the fire. जिस इंसान ने बोला था उनको आग में डाल दो, वही इंसान बोल रहे हैं आग से बाहर निकालो। That is a very surprising, ये बहुत एक अचंभित कर है। Some people they want to kill you. कई बार लोग आपको मारना चाहेंगे। Satan want to kill you. शैतान आपको मारना चाहेगा। But the Satan will, that's release him. लेकिन प्रभु को देख के शैतान आपको छोड़ देगा। Satan know that you can't kill because God is with you. शैतान को पता है वो आपको मार नहीं सकता क्योंकि प्रभु आपके साथ है। So Satan himself will release you. शैतान खुद ही आपको छोड़ देगा। Satan himself flew away from you. शैतान खुद ही आपसे भाग जाएगा। Amen. आमेन। Same thing like that Nebuchadnezzar and this one. राजा ने भी ऐसे See, ही किया। king himself put in the fire. राजा ने कहा ये आग में डाल दो। And king saw that they are the son of, they saw Jesus Christ in their life. और जब उसने परमेश्वर के पुत्र को देख लिया, Then the king is the one who told them to bring out outside. अब राजा ही बोल रहे हैं भारत को बाहर निकालो। And they bring out. और उनको बाहर And निकालो। when they see nothing happen, और उसने देखा अरे इनको तो कोई even जला their ears, one single piece was not burning. बाल भी नहीं जले, कपड़े भी नहीं जले, बिल्कुल ठीक है। They smile and come out. और हंसते हंसते बाहर आ गए। Then what did you Nebuchadnezzar? तो राजा ने क्या किया? Jesus God is the really true living सच God. में जो इनका परमेश्वर है वो ही सच्चा परमेश्वर है। That is our life is. हमारा जीवन है। See, when you overcome the suffering, जब हम परेशानी के ऊपर जय when you पाते हैं, overcome the pain, जब हम दर्द के ऊपर जय then पाते हैं, people say, oh, that God is really great. तब लोग God. बोलते हैं कि इन लोगों का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। How much we try to kill them, हमने but they कितना are इनको not. मारने की कोशिश करी, बच ही जाते हैं। There is a don't afraid Satan. इसलिए शैतान से डरना नहीं है। Satan himself put you to problem. शैतान ही आपके लिए परेशानी लाएगा। But God will come and rescue. He himself will flew away. और जब परमेश्वर बचाने आएगा, शैतान खुद ही भाग जाएगा। So that is the thing. You see, Nebuchadnezzar himself put it, and Nebuchadnezzar himself तो released the people. नेबूकदनेस्सर राजा ने खुद ही उन तीनों को डाला और खुद ही बाहर निकालने का ऑर्डर भी दिया। That is because he didn't have power. क्यों? क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं है। Amen. आमेन। That God is our God. वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर। So now what the king do? तो ये राजा ने क्या किया? Then when they come out, जब वो बाहर आए, then he told to that, he give a decree, he give a command. तब उसने एक और आज्ञा दी। So you read that, what is that in verse 22? 28. 28 में पढ़ेंगे। हाँ। नेबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर जिसने अपना दूध बेचकर अपने इन दासों के इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर को कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। Amen. See, now the king is telling them, nobody will not touch these people. अब राजा क्या बोल रहा है? इन तीनों को छूना नहीं। All the language, all the culture, सारी जाति के लोग, सारी भाषाओं के लोग, and all the people who we should respect the Daniel and these people, their God. और अब हमें इन तीनों के परमेश्वर की ना हम सबको इज्जत करनी है। And they are the true living God. ये सच्चा परमेश्वर है। See, Nebuchadnezzar before he think that he is a God, राजा को क्या लगा था? मैं ही परमेश्वर हूँ। but now he saw the deliverance. अब वो उसका भी छुटकारा हो गया। That is why today many people are like that. आज बहुत सारे लोगों के जीवन ऐसे See, ही। many people are suffering. You go through pain. आज हम में से बहुत सारे लोग डरते Then when हैं। God heal you, जब प्रभु बचाता है, then you say, oh, that यीशु मसीह का बहुत शक्ति है, हम लोग बीमारी को ठीक करते हैं. So now many people through your healing and many people through suffer, seeing the miracle, they come to the Lord. तो ऐसे ही बहुत सारे लोग आज चमत्कार और चंगाइयाँ देख के प्रभु में आ जाते हैं। See, now many people, they used to tell me, Hades Nagar, no? They thought that the Ridhika would die, but through Ridhika life, many people come to the Lord. तो जैसे आप देखिए आदर्श नगर से जब इतने सारे लोग हमारी कलीसिया में आते हैं, उन्होंने सब लोग पास्टर को भी यही बोलते हैं कि जो रितिका है वो लग रहा था वो मर जाएगी और सब लोग ये जानते थे, लेकिन जब वो बच गई तो उसको देख देख के बहुत सारे लोग प्रभु में आए। So now God healed them, then they say that yes, this God is और जब powerful. वो ठीक हो गई तो लोगों ने बोला हाँ मतलब सच में परमेश्वर में शक्ति है। See, the same thing now that the Daniel and these people, the whole nation of
Babylon see the God's power, and then they say that this God is a true living God. ऐसे शतरंज मेशक और अबेदनगो के विश्वास के द्वारा लोगों ने सच्चे परमेश्वर को जाना और जिन लोगों जो बाकी भी लोग थे हर जाति के हर भाषा के लोगों को भी उन पर विश्वास रखने के लिए बोला गया। Not only rescue them, सिर्फ बचाया नहीं, Nebuchadnezzar not only rescue them. राजा ने सिर्फ उन तीनों को नहीं बचाया। The last, 30 is so beautiful. और 30 में क्या लिखा है? सिर्फ उन तीनों को बचाया नहीं, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा कर दिया। See, they give the position promoted. क्योंकि पोजीशन और ऊपर चली गई। So when you go through something in our जब life, प्रभु हमारे जीवन में कुछ करता not है, only healing, सिर्फ चंगाई नहीं, not only blessing, सिर्फ आशीष He नहीं, will promote your life. वो आपके जीवन को You ऊपर become great. आप महान You बनेंगे become mighty. और आप महान And the बनेंगे। whole world will know पूरी you. दुनिया आपको And जानेगी you are the great या God. सच में आपका परमेश्वर महान है। So that the God showing here in this chapter, तो परमेश्वर इस चैप्टर से क्या we सिखाया? need to be faith in the midst of problems. हमें परेशानी के बीच में प्रभु पे विश्वास रखना है। The problems will not be shaking our heart. जो परेशानी हमारे दिल को हिलाने ना पाए, And the problems will not give up our life. हमारे जीवन में हम हार ना मान जाए, Our faith will not give up. हमारा विश्वास गिरना नहीं चाहिए, Our belief in Jesus Christ will not give up. हमारा विश्वास प्रभु में गिरना नहीं चाहिए। Because of your situation, हमारी परिस्थितियों की because वजह of से, your problem, हमारी मुश्किलों की because वजह of your job, से, आपकी नौकरी की because वजह of से, your marriage, आपकी शादी की because वजह of से, your sickness, आपकी बीमारियों की your वजह से, faith will not be shaken away from God. ये चीजें आपके विश्वास को हिलानी नहीं चाहिए। But the more this thing done, लेकिन जितनी the चीजें आपके more जीवन में you हो, stronger and उतना ही faith in विश्वास God. आपको प्रभु में बढ़ना चाहिए। Then you will see the glory of God. तभी आप प्रभु की महिमा Then you होगी, will see the miracle of तभी God. प्रभु के चमत्कार Then you होगा, will see the power of तभी God. प्रभु के सामर्थ्य होगी। And not only that, और सिर्फ इतना ही नहीं, God will promote your life. प्रभु आपको और ऊपर लेकर जाएगा। Then you will say, many will say, wow, this is और तब लोग कहेंगे, अरे वाह, ये इंसान तो this बहुत- family are really great. ये परिवार तो सच में महान है, These women are really faithful. ये औरत तो सच में बहुत विश्वासी Before है। they are telling you so many पहले rubbish, तो लोग आपके बारे में बुरा बोलेंगे, they will say these women are foolish. They will say लोग this ये women औरत are बेवकूफ nothing. है, बेकार है, And this family are poor. ये परिवार गरीब है, And this family are no job. This family इस are fighting. परिवार में नौकरी So नहीं many है, things they will tell you. लोग आपके बारे में बुरा बोलेंगे। But if you didn't listen to पर अगर आप God, इन चीजों को नहीं सुनोगे, if you faith in God, विश्वास करोगे, continue walking with प्रभु God, के साथ चलते रहोगे, then the end of your life, you know, the end of your testimony, तो आपकी गवाही का अंत क्या होगा? they will say, wow, this family is completely different. लोग बोलेंगे, अरे वाह, ये परिवार तो सच में बहुत अलग है, And we thought that they are like this. और हमें तो लगा था ये ऐसे नहीं होंगे, And we thought that this family will poor and die. हमें तो लगा था ये परिवार गरीबी में मर जाएगा, We thought that this family will do nothing and they will die. और सोचा कि ये इंसान तो कुछ नहीं करेंगे पर मर जाएंगे, But we see the power of God. लेकिन हम प्रभु का Then they साथ, will say, where are you going? तो लोग बोले, कहाँ जा रहे हो तुम? And who God you are worshiping? कौन से प्रभु की आराधना कर रहे हो? What church you are going? कौन से चर्च में जाते हो? Now you are every day you are growing. अब हर रोज आप पढ़ रहे हो, So people will investigate your life. What is your तब life? लोग देखेंगे अच्छे से जीवन में क्या है ऐसा कि इतना प्रभु में पढ़ रहा And है, now you started sharing your और testimony. धीरे धीरे फिर आप अपनी गवाही को बांटोगे, And now people started believing और that. लोग आपका प्रभु पे विश्वास That करेंगे, is God our God. ये प्रभु हमारा प्रभु है। See Daniel and all they never tell preaching in the in that आप Bible. ये देखिए, दानियेल और उसके 3 दोस्तों ने कहीं रोड पे जाके प्रचार नहीं किया, They know that that place is a danger उन्हें पता था यहाँ पे खतरा बहुत ज्यादा, उन्होंने प्रचार नहीं किया, because the people were worshiping क्योंकि idols लोग वहाँ पे सारे मूर्ति पूजक रहते थे and they never believed the true living और God. सच्चे परमेश्वर में विश्वास नहीं But करते, in the midst of that, लेकिन परेशानियों के बीच they में believed that there is a God, उन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु है, and they didn't influence the things of the world. और उन आसपास की चीजों से उन पर असर प्रभाव पड़ने They नहीं दिया। didn't influence the Babylon nature culture. बाबिलोन की संस्कृति और व्यवस्था को उन्होंने अपने पर असर पड़ने नहीं दिया, We are very easy to influence the things of this world. लेकिन हम इस दुनिया की चीजों में फटाफट उनका प्रभाव हम पर आ जाता है, We are very whoever we meet, we are easy to follow that person. जिसके साथ भी हम घूमते हैं उसके ऐसे फटाफट बन जाते हैं, And we anywhere that we go, we try to adopt the culture. जहाँ पर भी हम जाते हैं उनके जैसा बनना चाहते हैं। And हिंदू पार्टी चलो हिंदू जैसा बनता है, हिंदू शादी में चलो हिंदू शादी का ऐसा करते हैं, तो हम easily influence करते हैं. But these people they come from Israel and they live like a child and sons and daughter of तो God. यहाँ पे जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल उसके दोस्त हैं, ये सब लोगों ने बेबीलोन में रहकर भी वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग, वहाँ के तौर तरीकों में अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया, प्रभाव नहीं पड़ने दिया, लेकिन वो प्रभु पे हमेशा विश्वास होते रहे। We see that Daniel, Daniel used to even chapter 6, Daniel used to pray 3 times a day. अगर हम बात आए तो दानियेल के अध्याय 6 में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे दानियेल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। He used to, in the midst of difficulties, in the midst of he was working in the government, but he used to go and pray in the चाहे वो house. कितना ही परेशानियों में था, कितना ही व्यस्त था, लेकिन फिर भी वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता ही करता था। That you will see when you pray, people were investigating, this person is not worshiping the true living और God. जब दानियेल को भी
कि अच्छा ही सच्चे परमेश्वर की आराधना करता है लेकिन राजा की आराधना नहीं करता। But God giving victory after victory. पर फिर भी परमेश्वर को सफलता पे And सफलता that trial never stopped. और ये मुश्किल कभी खत्म नहीं See होती। the fire, no burn. Dynasty continue worshiping. That another king come. They challenges again. They want to put them into lie on them, but they are stand again and they overcome again. तो हम देखते हैं दानियल के 3 दोस्तों को आग का सामना करना पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि जब राजा बदल गया, वहां पे जो नबूकदनेस्सर राजा चेंज हो गया, उसके बाद दानियल की परीक्षा हुई और दानियल को वो शेर की गुफा में डाल दिया गया। So many things. So sometimes you overcome after another, and but you think that oh today is मेरा काम खत्म हो गया और मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, हम कभी भी ऐसा होते हैं। ऐसा नहीं। There is a God said be stand firm, be alert. इसलिए परमेश्वर कहता है हमेशा चौकन्ने रहो, हमेशा सावधान रहो कि परेशानी एक के बाद एक आती ही रहेगी। हम सोचते हैं ना आज तो काला जादू निकल गया, मैं ठीक हो गया, तो कल दूसरा तरफ से आता है। So there is a thing that Satan will never give up. शैतान कभी हार नहीं मानने वाला। He will, but God will never allow the Satan to kill us. पर परमेश्वर कभी शैतान को जीतने भी नहीं देगा। God will, giving us a victory after victory. शैतान से परमेश्वर हमें बार-बार सफलता पे सफलता देता है। That God, our God is powerful. वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। Amen. आमीन। So we should be like Daniel and these people. तो इसलिए हमें दानियल और उसके दोस्तों की तरह बनना है। And God is teaching us in the midst of problems we should have faith in और God. परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि मुश्किल के बीच में भी हमें उन पर भरोसा रखना है।